وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. آپ کو براہ راست وہی چلتے ہیں. جو اپنے ایک عزم رکھتے ہیں پاکستان کو پروگریسو پاکستان بنانے کا، پنجاب کو ایک جو ہے وہ ایک بچوں کے لیے، اس پنجاب کے صوبے کے عوام کے لیے ایک ترقی کرتا ہوا پنجاب بنانے کا ان بچوں کو موقع ملا ہے. اور جو سب سے اچھی اور خوشی کی بات تھی کہ ان بچوں میں جتنا میں نے وہ سینٹیمنٹ دیکھا، جو انہوں نے خود اس کا کئیوں نے اظہار بھی کیا، جنہوں نے آ کے چیف منسٹر صاحبہ سے وہ اسکالرشپس حاصل کیے، انہوں نے بھی مطلب ایک تو انہوں نے یہ بہت خوشی کی بات تھی کہ تمام بچوں کو میرٹ کے اوپر اسکالرشپس ملے اور وہ سب ڈیزرونگ بچے تھے، اور ان سب کا ایک جملہ بڑا کامن تھا کہ الحمدللہ ہم اپنے والدین پر بوجھ نہیں ہوں گے، ہماری تعلیم ان کے لیے بوجھ نہیں ہوگی، اور یہ ہیں وہ کرنے کے کام جس کو پنجاب کے لوگ ایکنالج کرتے ہیں، جس کے لیے پنجاب کے لوگ فساد کے لیے باہر نہیں نکلتے ہیں. اس کو کہتے ہیں پاپولر سیاست، اس کو کہتے ہیں خدمت کی سیاست. اور جو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو ہے یہ جو بچے ہیں اسکالرشپس والے، ان کی 5 سال کی ڈگری جو ہے اس کی تمام ٹیوشن فیس جو ہے وہ پنجاب حکومت ادا کرے گی. اور یہ 130 ارب روپے کا پروگرام ہے، چھوٹا پروگرام نہیں ہے. 130 ارب روپیہ جو ہے وہ ان بچوں کی تعلیم پہ خرچ ہوگا. یہ جو ہے وہ دوسرے صوبوں میں آنسو گیس کے شیل خریدنے کے لیے جو پیسے استعمال ہوتے ہیں وہ یہاں استعمال ہونے چاہیے ان بچوں کے لیے. یہ جہاں جو اپنے صوبے کے جو مساجد اور ائمہ کرام کے نام کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو 50-50 ہزار روپیہ دے کر وفاق پر لڑنے کے لیے لایا جاتا ہے بچوں کو، وہ پیسے نہیں. یہ 130 ارب روپیہ، ان میں سے بچے ڈاکٹرز بنیں گے، ان میں سے بچے سکالرز بنیں گے، ان میں سے بچے انجینئرز بنیں گے. اور یہ بچے جو ہے یہ پاکستان کے لیے، پنجاب کے لیے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ تقویت کا باعث ہوں گے. اور اس کے بعد جو سب سے آج جو ایک بہت بڑی اہم خوشخبری جس کا آپ بھی، میں بھی اور یقیناً پنجاب کے لوگ بھی جس کا انتظار کر رہے تھے، وہ ہے چیف منسٹر صاحبہ کا فری سولر پروگرام. اور آج الحمدللہ فری سولر پینل پروگرام جو ہے اس کی لانچنگ کر دی گئی ہے، جس کا آج باقاعدہ افتتاح کیا ہے. پنجاب کے صارفین جو ہے وہ آج SMS جو ہے اس کے اوپر اور آن لائن پورٹل پر جو ہے وہ اس کو اپلائی کریں گے. یقیناً یہ سولر پینل جو ہے اس کا مقصد وہ بجلی کے بھاری بل جس سے یقیناً ہر بندے کی جیب جو ہے وہ تکلیف کا شکار ہوتی تھی، اس سے بہت بڑا ریلیف ملے گا. اور یہ پہلے یہ کنٹینیوٹی ہے اس پروگرام کی جو چیف منسٹر صاحبہ نے پہلے 14 روپے کا پر یونٹ ریلیف کے ساتھ جو ہے وہ شروع کیا تھا، جس کے اندر 54 ارب روپے سے زیادہ لوگوں کو، پنجاب کے لوگوں کو 14 روپے پر یونٹ کے حساب سے ریلیف دیا گیا تھا. وہ ایک پہلا کمپوننٹ تھا. اور آج اب یہ سولر پروگرام کے بعد مستقل طور پر جو ہے یہ لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہوں گے. 73 لاکھ صارفین نے 14 روپے یونٹ کا جو ریلیف تھا اس سے فائدہ اٹھایا، 74 لاکھ صارفین نے. اور اب یہ جو فری سولر پینل اسکیم ہے اس کے تحت 1 لاکھ سولر سسٹم جو ہے وہ لوگوں کو دیے جائیں گے، جس میں جو 200 یونٹ تک صرف کرنے والے صارفین ہیں ان کو سولر سسٹم مفت دیا جائے گا. 200 یونٹ جو استعمال کرتے ہیں، جو ہمارے واقعی وہ لوگ ہیں جن کی آمدنی بہت قلیل ہوتی ہے اور ان کو اپنے اینڈز کو میٹ کرنے کے لیے بجلی کے بلوں سے ان کو نجات ملے گی، ان کو فری سولر جو ہے وہ دیا جائے گا. 100 یونٹ جو ماہانہ ہیں صرف کرنے والے جو صارفین ہیں ان کو 550 واٹ کا جو سولر سسٹم ہے وہ مفت دیا جائے گا. اور جو 200 یونٹ والے ہیں ان کو 1100 واٹ کا. یہ اب ظاہر ہے ایک ورکنگ ہوئی ہے، جو جتنے یونٹ استعمال کرتے ہیں صارفین ان کی کتنی کنزمپشن ہے، اس حوالے سے یہ ورکنگ کر کے جو ہے یہ نکالی گئی ہے. اور اس کے اوپر جو 8800 نمبر ہے 8800 اس کے اوپر SMS کر کے جو ہے رجسٹریشن کرائی جا سکتی ہے، یا جو cnsolarscheme.punjab.gov.pk اس پورٹل کے اوپر بھی ہے وہ اپنی رجسٹریشن کرائی جا سکتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک انیشیٹو ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی گرمیوں سے پہلے ان تمام لوگوں کے گھروں کے اوپر یہ سولر موجود ہوگا. اور آج جب بریفنگ دی جا رہی تھی چیف منسٹر صاحبہ کو تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ لوگوں تک یہ بات بھی پہنچاؤں کہ ابھی فیڈرل گورنمنٹ نے بھی جو ہے وہ بجلی کے جو ہے وہ یونٹ کے اوپر ریلیف دیا ہے، اور اس کے اندر بھی وہ لوگ ہیں جو 200 یونٹ تک جو فال کرتے ہیں، اور وہ 200 یونٹ والوں کو جب یہ سولر مل جائیں گے تو وفاقی حکومت کی بھی مدد ہوگی. 1.5 ارب روپے سے زیادہ سالانہ جو ہے وفاقی حکومت کی بھی بچت ہوگی اس سولر پروگرام کی وجہ سے. تو یہ ایک کمپریہنسو پروگرام ہے اور اس سے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں،
गर्मियां नहीं, 2 गर्मियां नहीं, तो लोगों तक ये बात भी पहुंचाऊं कि अभी फेडरल गवर्नमेंट ने भी जो है वो बिजली के जो है वो यूनिट के ऊपर रिलीफ दिया है, और उसके अंदर भी वो लोग हैं जो 200 यूनिट तक जो फॉल करते हैं, और वो 200 यूनिट वालों को जब ये सोलर मिल जाएंगे तो वफाकी हुकूमत की भी मदद होगी। 1.5 अरब रुपए से ज्यादा सालाना जो है वफाकी हुकूमत की भी बचत होगी इस सोलर प्रोग्राम की वजह से। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, और इससे एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 1 गर्मियां नहीं, 2 गर्मियां नहीं, साल हर साल के लिए बिजली के बिलों से जो निजात मिलेगी। और अगला प्रोग्राम इसका इंशाल्लाह सोलर जो ट्यूबवेल्स हैं वो इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहिबा चाइना से वापसी पे सोलर जो ट्यूबवेल्स हैं उसका भी इफ्तिताह करने जा रही हैं, और सोलर जो ट्यूबवेल्स के जरिए भी जो है वो बिजली की जो खपत है उसको भी यकीनन कंट्रोल किया जा सकेगा। और वो प्रोग्राम्स हैं जिसका वादा चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आपके साथ कई दफा खुद भी किया, मैं भी आपके सामने हाजिर होती रहती हूँ वक्तन फवक्तन ये चीजों को बताने के लिए। और मैं ये इसमें बहुत ज्यादा फर्क इंशाल्लाह 5 साल के बाद जब चीफ मिनिस्टर साहिबा की हुकूमत खत्म होगी तो इसके अंदर बहुत वाज़ेह फर्क जो है इस कारकर्दगी का आपको नजर आएगा। और अब वो फॉर्म 45 और 47 का रोने वाले जो हैं उनको मेरा ख्याल है कि खामोशी से घर बैठ जाना चाहिए, बैठेंगे वो नहीं, उनका अपना अगला फितना फसाद का प्रोग्राम तैयार है। लेकिन ये बात तो अपने तौर पर जो है वो एक हकीकत है। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने मुझे 22,500 से हुई है, और इंशाल्लाह ताला ये इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क इंशाल्लाह 5 साल के बाद जब चीफ मिनिस्टर साहिबा की हुकूमत ख़त्म होगी तो इसके अंदर बहुत वाज़ेह फ़र्क जो है इस कारकर्दगी का आपको नज़र आएगा। और अब वो फॉर्म 45 और 47 का रोने वाले जो हैं उनको मेरा ख्याल है कि खामोशी से घर बैठ जाना चाहिए, बैठेंगे वो नहीं, उनका अपना अगला फितना फसाद का प्रोग्राम तैयार है। लेकिन ये बात तो अपने तौर पर जो है वो एक हकीकत है। और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने मुझे भी ये आज अभी कह के भेजा कि उनकी तरफ से पंजाब के तमाम अवाम का और ख़ास तौर पर शेखुपुरा के उन गयूर लोगों का जिन्होंने 44,500 से ज़्यादा वोट जो है वो देकर कल मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को कामयाबी दिलाई है, वो उनकी मशकूर है। और इंशाअल्लाह ताला ये खिदमत का, कारकर्दगी का और परफॉर्मेंस का जो सफ़र है इसको और तेज़ी से जो है वो तय करेंगे। और उसी की आज निशानी है कि आज सोलर प्रोग्राम जो है उसका भी आगाज कर दिया गया। अच्छा, ये जेल में बैठे पंजाब को एक बानी पीटीआई ने कहा है कि मेरे पास आखिरी कार्ड है, जो कि आखिरी कार्ड वक्त आने पर वो इसके ये शो करेंगे। आपके ख्याल में कौन सा कार्ड हो सकता है जो अभी तक उन्होंने दिखाया नहीं है, या उसकी तशरीह तो मैं बात करूंगी और वो बात चल जाएगी। जो वो काम की बात है, जो लोगों को सोलर बताना है, जो स्कॉलरशिप बताना है, वो पीछे रह जाएगा। नहीं, उसके हाथों कोई काम की बात हो नहीं सकती भाई। वो एक क्लाउन है बैठा हुआ, जो है वो जोकर है, और जोकर कार्ड ही निकाल सकता है। वो निकाल लिया उसने, वो निकल आया है। वो जी हम सिविल नाफरमानी करेंगे, वो सिविल नाफरमानी पहले भी करके देखी थी भाई। उस वक्त भी इसको किसी ने जो है वो घास नहीं डाली थी। और अब भी देखिए पाकिस्तान वो लोगों को कह रहा है ओवरसीज को रेमिटेंसेस ना भेजें, तो रेमिटेंसेस उनके घरों में जाती है ना, उनको ना भेजें। वो फाके अपने पाकिस्तानियों को वो फाके मरवाना चाहता है। वो चाहता है कि लोग जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सुकून ना ले। वो कितने कार्ड, पहले मजहब कार्ड, IMF के खिलाफ खत लिखवाने के कार्ड, पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने के कार्ड, कभी 9 मई की दहशतगर्दी का कार्ड, कभी जो है वो मजलूमियत कार्ड, कभी साइफर कार्ड, कितने तो कार्ड खेल चुका है भाई। अब हमें माफी का कार्ड दे दो, वो मेहरबानी कर दो इस मुल्क के ऊपर। इस मुल्क को तुमसे माफी का कार्ड चाहिए। हुकूमत की जानिब से कई प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, अपनी छत अपना घर, हमने इसकी लॉन्चिंग तकरीब भी देखी, और फिर ये भी बताया जाता है कि इतने लोगों को पैसे दे दिए गए हैं। सारा काम आप ऑनलाइन कर रहे हैं, कि ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों को पेमेंट दी जा रही हैं हम उनका भी कोई रिकॉर्ड जो है उस तक आम आदमी की या मीडिया की रसाई हो, ताकि प्रोग्राम में मजीद शफाफियत आ सके? शफाफियत भाई इसमें पूरी है, हर चीज़ जो है वो डिजिटल होती है। डिजिटल में शफाफियत जो है उससे ज़्यादा क्या ही होगी। और आपको मेरा ख्याल है थोड़ा सा आप खबरों से दूर है शायद। आपको साथ के साथ जो है ना वो बाकायदा पतों के साथ, उनकी वीडियोस के साथ, जहाँ जहाँ जितना जितना घर बन गया है वो बाकायदा दिया जाता है। मैं आपको आज स्पेशली भी भेज दूंगी ताकि अगर आपको नजर नहीं आया तो आपको नजर आ सके। मैडम पहले मैडम ये अभी
5 या 6 साल का अर्थ हमने देखा कि बहुत अच्छी चीफ एग्जेक्टिव सुबह पंजाब को मिली है मरियम नवाज शरीफ 6 साल के बाद, यानी कि पहली हुकूमतों जब खत्म हुई सवाल किया। और दूसरा, अभी 190 मिलियन केस में अदालत ने बुशरा बेगम साहिबा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है, तो KPK में जाहिर है वो मौजूद है, तो फिर पंजाब कहाँ पुलिस की मदद करेगी? देखिए मैंने यार पहले जैसे उनसे ने कहा था कि मैं लीग चौक से भागी नहीं थी, अकेली वहाँ खड़ी थी, मैं डरती नहीं हूँ, और वो आपके समझी बाकी मेरे ख्याल है मेरी स्माइल से आपको पता चल जाना चाहिए, मैं कुछ कहूँगी तो शिकायत हो जाएगी। गुजारिश ये है कि ये जो बुशरा बीबी जो है वैसे वो महरम के बगैर निकलती नहीं है, लेकिन सारा दंडनाई वो मतलब पर्दा वो बहुत करती हैं, लेकिन वो पर्दा भी कोई नहीं था पूरे लॉन्ग मार्च के अंदर, वो महरम का भी कोई शिक नहीं थी। आज वो कोर्ट में पेश नहीं हुई, लेकिन वो उस एक शहीद के घर गई हैं बकौल उनके, जिनको उन्होंने 1 करोड़ रुपए का KPK की गवर्नमेंट से जो है वो लेकर उनको दिया। वहां जाने के लिए उनके पास टाइम भी है, वहां वो जा भी सकती हैं, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हो सकती बिकॉज वहां पे हीरो का जवाब देना पड़ेगा। और दूसरी जो बात आपकी है कि वो कहती है भागी नहीं है, तो तुम ही बतलाओ कि हम बतलाए क्या। भागने भगाने की एक लंबी लिस्ट है, वो मुझसे ना सुने तो बेहतर है। अच्छा ये बताइएगा, एक जानिब में मरियम नवाज डेवलपमेंट के काम कर रही है सुबह पंजाब में, वफाक में शहबाज शरीफ जो है वो मिशन की बहाली के लिए दिनात एक करें। एक और किरदार है फैसल बागडा, वो कह रहे हैं जी कि आवाम इन चेहरों से गुलों से तंग आ चुकी है, इनकी छुट्टी होने वाली है, तो क्या कहेंगे ये किसकी जुबान बोल रहे हैं? सेनेटर तो पीपल्स पार्टी की जानिब से हुए हैं सिंध के जब वो अपने वो मेरा ख्याल है सवाल उनसे पूछना चाहिए, जब वो अपने बारे में क्लियर हो जाएंगे तो हम बता देंगे। बात यह है कि वाडा साहब को चाहिए जनरल इलेक्शन लड़े, उनको पता चल जाएगा, हम जनरल इलेक्शन लड़के आते हैं। अच्छा मैडम, संजीदा का एक मैटर हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, एक स्टूडेंट की डेथ हुई, इंतजामिया का कल तक मौक़िफ़ ये था कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर फायरिंग नहीं हुई, लेकिन पंजाब पुलिस की FIR बता रही है जो वहाँ पे वालिद साहब की मदईयत पे उनकी हुई है कि FIR हुई है। हमने ये देखा है कि इदारों के अंदर इस किस्म की फायरिंग बहुत सारे ऑपरेशन हुए। पंजाब गवर्नमेंट के इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है, क्या एक्शन लेने जा रही है ताकि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हमने लसानी मामला देखें? एक कमेंट इस पे दे दीजिएगा। दूसरा, इमरान खान ने कल जो मुतालबा किया है, 2 मुतालबात उन्होंने रखे हैं कि वो 14 से सिविल लाफरमानी की तहरीक है। एक उसमें यह है कि अंडर ट्रायल कैदी जो है उनको रिहा किया जाए, तो क्या पंजाब गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी तजवीज़ ज़ेरे गौर है जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसे जो लोग हैं उनको रिहा करके पोलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ा जाए? देखिए पहली तो बात यह है कि जो आपका पहला सवाल है पंजाब यूनिवर्सिटी से मुतालिक, उस पर अभी तफ्तीश चल रही है। अभी कुछ हक़ाइक़ सामने आए हैं कि कोई गाड़ी के अंदर कुछ दोस्त मौजूद थे और किसी एक के पास असला मौजूद था, शायद उससे ये वाक़या हुआ है, लेकिन अभी इस पर तफ्तीश मुकम्मल हो जाए। बिकॉज पंजाब यूनिवर्सिटी बड़ा एक क्रिटिकल मैटर है, उसमें बहुत सारे सूबों से बहुत सारी कौमियतों के बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, और इस वक्त एक वाहियात और घटिया कैंपेन शुरू हुई है। पहले एक सूबे को दूसरे सूबे के खिलाफ CM जो है वो लड़ाने निकला था, फिर वो वफाक के खिलाफ एक पख्तून कार्ड आप निकाल के ले आए हैं। और खुद आप मुझे ये बताइए, इनके ये कहते हैं हमारे पता नहीं कितने जो है जितने भी लोग, अल्लाह ना करे हम कैटेगोरिकली कहते हैं, झूठ बोलते हैं, आपने इनमें से किसी को किसी के जनाजे पे शरीक होते देखा है? आखिर जनाजे होते हैं ना, मैयतों के जनाजे होते हैं, मैयतें कोई ऐसे थोड़ी है कुछ चूती है जो नजर नहीं आती। किसी एक के घर आपने जाके, अब जो भी इन्होंने निकाले, वो कंटेनर से गिरा वो मर गया, उसकी इन्होंने नमाज़ जनाजा भी पढ़ा दी, उसके घर खुद गड्ढापुर पहुंचा हुआ था। और एक और जो है वो जिस बच्चे का नाम लिया उसके बाप ने वीडियो दे दिया, उसने कहा कि मेरा बच्चा मेरे साथ बैठा, वो तो स्कूल में हाजिरी लगी हुई थी, हम तो नीचे हो गए। तो ये सियासी गिद्ध है जिनको लाशों के कारोबार करने हैं, और अब ये घटिया हरकत जो पख्तून कार्ड वाली है ये वो करना चाहते हैं कतई तौर पर। पाकिस्तान एक फेडरेशन है, हम सब पाकिस्तानी हैं, और किसी भी किस्म का कोई लिसानियत कार्ड हम यहाँ चलने नहीं देंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से तो मैं अभी सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ। दूसरी बात यह है कि यास्मीन राशिद को निकाल के कौन सी स्टेबिलिटी आ जाएगी, मुझे ये बता दें। यास्मीन राशिद ने 9 मई को स्टेबिलिटी लाई थी ना लाहौर की सड़कों के ऊपर, और फिर ये कि अंडर ट्रायल प्रिजनर को कौन सी हुकूमत निकाल सकती है, कौन से कानून के तहत, मुझे बताइए। अंडर ट्रायल प्रिजनर ट्रायल के बाद ही रिहा हो सकता है। गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई कानूनी जस्टिफिकेशन और वो चीज नहीं है कि जिसपे किसी अंडर ट्रायल प्रिजनर को अपनी मर्जी से निकाला जा सके। सो इमरान खान साहब मुतालबात करते रहेंगे, हम इधर से सुन के इधर से निकाल देंगे, हमारे पास टाइम नहीं है उनको मुतालबात। मैडम ये बता दीजिएगा, इस वक्त साफियों को प्लॉट भी दिए जा रहे हैं, एक रावी मस्कल प्रोग्राम था, इसके बाद में बात कर लेंगे वो बात। कब से ये स्टार्ट होने जा रहा है और कौन कौन से दूसरा ये है कि गवर्नमेंट सर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दो उसी कितने सो
سر یہ 100 سے 200 یونٹ والے جو لوگ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں فری SMS کے ذریعے بھی, اور آن لائن پورٹل پہ بھی اپنے آپ کو رجسٹر کرا سکتے ہیں. اور رجسٹر کرنے کے بعد ہاں یہ بھی بتا دوں, وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی. کہا کہ مریم نواز نے عوام کے لیے فری سولر پینل اسکیم کا بھی افتتاح کر دیا ہے.